नेक्स्ट है आपका रिकर्शन। सो रिकर्शन कॉन्सेप्ट है आपका फंक्शन के अंदर ही। सो बेसिकली रिकर्शन क्या होता है कि अगर आप फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल करें, ओके। जैसे कि मैंने प्रिंट इन्फो फंक्शन लिखा है, ये फंक्शन का पूरा ब्लॉक है यहाँ तक रिटर्न तक। इसी के अंदर सपोज मैंने यहाँ पे फंक्शन को फिर से कॉल कर दिया, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकर्शन, ओके। ये हमको बहुत यूज़फुल है, इससे हमारा कोड जो है बहुत कॉम्पैक्ट होता है और बहुत छोटा और अंडरस्टैंड करने में भी ईजी रहता है। तो इसलिए हम रिकर्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। रिकर्शन में जो सबसे फेमस एग्जांपल्स है वो है फिबोनाची सीरीज, फैक्टोरियल एंड बाइनरी सर्च। फैक्टोरियल एंड बाइनरी सर्च में आपको एक्सप्लेन करूँगी, और आपकी क्लास 12th के सिलेबस में भी है ये तीनों, ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो आपको ये दोनों में एक्सप्लेन करूँगी, और फिबोनाची सीरीज आपका रहेगा होमवर्क, वो आपको मुझे करके दिखाना है। Okay, so my dear students, first I'm explaining you about the factorial, like how you can use the concept of recursion in the factorial. You have already learned in class 11th and you have made the program using the factorial. You can find factorial of any number, okay. Here we are doing the same, we'll use the same formula, but what we are doing is we are using the concept of recursion. Recursion means in the function we are calling the same function, okay. So as you can see here I have first defined a function, and I'm taking the name is factorial and the parameter is n. Why I'm taking here only one parameter? Because we know if I want to find a factorial of 6, so we just need one parameter. That means factorial of any number. Like if I wanted to calculate a simple interest, then how many parameters I need? I need a principal into rate into time. So here for the simple interest I'll take 3 parameters. Similarly, to find a factorial we just need one parameter for the number that we are finding the factorial. So here we'll use only one parameter, okay. So here you can take any alphabet, any name you can use. Here I'm using n, you can take any p, f, a, whatever you like, okay. After that you just first will check, we are taking if loop, okay. So in if we are writing if n is equals to 1. If n is equals to 1, that means we are finding the factorial, we are putting the value of n is 1. So when we'll put here 1, so factorial of 1 is what? We know it is 1 only. So if we get value of n is equals to 1, then it will return 1, because factorial of 1 is 1. Else what it will do, it will go in the else loop and it will return n into f of n minus 1. You can write here else, and then you can create a block of else, and then you can write return n into f n minus 1, or you can directly write this return, because we know if we are out of the if loop, the second condition will be the else automatically, okay. So here we are returning n into f of n minus 1, okay. So now what will happen when we'll call this function? Here we are calling the function, here I have called this function thrice, for 6, for 5, and for 8, okay. So when I'm taking f of 6, print f of 6, so this basically means I am calling this function f, okay, and I'm giving the value is 6. So when I'll call this function, this flow will automatically will go to this function, it will call this function, okay, factorial. So I have given the name factorial, so here I'm also giving it factorial, okay. I just forgot to mention the factorial, I just taken it f, okay. Factorial, he will also take factorial. So when we'll call this function factorial of 6, that means factorial function is here, so the flow will go here, okay. Factorial of, and at the place of n we'll get 6. So factorial of 6, now it will check if n is equals to 1, but here our n value is what? 6. So it will just check, no, it is not equals to 1, so it will not return 1, it will go in the else loop, and it will do 6 into f of n minus 1. So 6 into f of n minus 1 is what? 6 minus 1 is 5. So n into, that means 6 into f of 5, okay. Now how this recursion function is working here, I'll just explain you here with one example. Now as you can see, we went to the else loop, and in the else loop what we are doing is we are using this formula, okay. N into f of n minus 1, okay. So when I'm taking the value is 6, okay, when we are calling the function and putting the value of n is 6, so here also we'll get at the place of this 6 into f of
6 minus 1 is what? 5. That is actually this value which I have already written. Okay, so 6 into f of 5. Now by this formula we'll get this in the first condition. In the first loop we'll get this value. Okay, now when so here we have got n into, that means 6 into f of 5. F of 5 means what? We are calling the function again. Okay, f of 5, as you can see here, f of 5 means you are calling the function again. So this flow again will go to the function. Okay, here, fine. So factorial of 5. Okay, factorial of 5 is what? Again it will check. It is, this value is not equals to 1. So बेटा अब चुपचाप वहाँ बैठ जाना, मैं आ जाऊंगी अंदर, कर ले चुपचाप बैठ के. Okay, so this is f of 5, and now again this function will execute and will check it is not equals to 1. So this will come in the else loop. Now we'll get here 5 into f of 5 minus 1 is 4. Okay, so you can see here 5 into f of 4. Again the same process. The value of n is here 4. Okay, so again it will go in the else loop. Now we'll get 4 into f3 and so on. At the end when you'll get 2 into f of 1. Okay, so for f of 1, that means n value is 1. When n value is 1, okay, so what it will do, it will return 1. So at the end we will get n is equals to 1. So f of 1, that means n की value 1 और n की value 1 होगी तो मैं क्या रिटर्न हो जाएगा, f of 1 रिटर्न होगा. ओके, सो यहाँ पे हमें f1 की जगह आ गया 1. बस अब हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, रिवर्स कंडीशन में. सो f1 की वैल्यू हमने 1 पुट की, 2 इंटू 1 कितना आया, सो f2 के अंदर 2 स्टोर हो गया. तो f2 की वैल्यू अब यहाँ पे हो गई 2. नाउ 2 इंटू 3 6, f3 के अंदर 6 स्टोर हो गया. यहाँ पे 6 इंटू 4 इज 24. और बस ये लोग आपका बैक ट्रैक करेगा एंड फाइनली विल गेट हियर फैक्टोरियल ऑफ 6, 5 और 5 की वैल्यू पुट करके 720. ओके, सो इस तरीके से हमारा रिकर्शन काम करता है. बेसिकली वैल्यूज़ को चेक करता है, जब तक हमारी लास्ट वैल्यू रिटर्न नहीं हो जाती तब तक ये एल्स लूप में जाता है. ओके, और ये चेक करता रहता है, लास्ट में बैक ट्रैक करके वैल्यूज़ को वापस रिप्लेस करता रहता है और हमको फाइनल आउटपुट प्रोवाइड करता है. तो इस तरीके से रिकर्शन हमारा काम करता है. यहाँ पर भी हम फैक्टोरियल लिखेंगे बिकॉज मैं सब जगह नाम जो है इसका फैक्टोरियल यूज़ किया है. ओके, factorial, fine. Okay, now I am running this module. So in this you can see the factorial of 6 is 720, then 120, and then this is last one. Okay, so these are the factorial we have calculated for 6, 5 and 8. Because I have called the function thrice, so we are getting the output twice. Okay, now after completing factorial I'll be explaining you about the binary search. Okay, so this is the first time you are hearing about this concept binary search. So basically before going into the code and program, first I'll explain you the concept of binary search, so it will be easy for you to understand the code. Okay, so binary search, now as you can see in the name, searching. Okay, so basically हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सर्च करेंगे, किसी ना किसी सर्चिंग ऑपरेशन को हम यहाँ परफॉर्म करेंगे और साथ में लिखा है बाइनरी. बाइनरी का मतलब क्या हो गया, 2. सो हम यहाँ पे सर्चिंग परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पे मतलब 2 यानी कि किसी लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, एट लिस्ट बोल सकते हो आप, एरे बोल सकते हो या टपल बोल सकते हो, यानी जो भी हम डेटा ले रहे हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम क्या कर रहे हैं, किसी एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं. तो ये बेसिकली बाइनरी सर्च होता है. अब ये देखिए, सपोज आपके पास कोई एरे है. एरे हम बेसिकली बोलते हैं जो लिस्ट होती है हमारी उसको. ओके, सो हमारे पास कोई एरे है, लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स रखे हैं. द एलिमेंट्स लाइक हमारे पास रखा है 12. या विल टेक सिंपल एलिमेंट्स 1, 2, 3, then 6, then 8, then 19, then 20. I'm just taking any one array. Okay, 28. So this is the array we are having. Now we need to find any one element. That means we are searching one element and I wanted to search element that is 19. Okay, and before explaining this, just one thing more. Now for binary search, the first condition is what? Your list should be sorted. If you want to implement binary search, then this list should be sorted. If your list is not sorted, then you won't be able to apply this binary search. Okay, so that's why I have taken these elements in the increasing order in the sorted form. Fine. After that, next is what? Why? Okay, the second thing comes is why we need binary search. Okay, like if you want to search element 20 where it is 20, so you simply can write its index. So if you write like
the array is A and you write its index, like the index of 8 is 0 1 2 3 3, so you write 3, so A3 you will just get this number 8. Okay, so we can do from this also, but then why we are creating a big code binder search, why we are using this? Okay, so basically we need binder search when we are having a big list, when we are having a lot of number in the list. Okay, like I'm having the numbers 2 raised to power 32, my data is so much in the list, that time I require this binary search, because when the data is too much, it is too long, and it is very difficult to find the element. Suppose I have to find 28 and it is at the and I'm having 2 raised to power 32 numbers. Okay, so I'll start from the beginning only, I'll just check one, this element, this element, this element, and I'll find its index, and then I'll find that number, particular number. Okay, but I'm having a big number, so it's really very difficult to go at that number. Okay, and perform the searching operation. So for that we are using the binary search. Binary search, basically what it do, it just divide this list. Okay, so searching operation with binary means two parts, so it just divide this list into the two parts and then it starts searching. So suppose if I break this here, अगर यहाँ मैं 19 के बाद इसको ब्रेक कर देती हूँ, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट मेरा ये बन गया और दूसरा पार्ट ए। ओके, अब मुझे पता है मेरा 28 कौन से पार्ट में आने वाला है, इधर वाले में, क्योंकि सॉर्टेड एरे है तो मुझे पता है कि 19 से बड़ा एलिमेंट है तो ये सिर्फ इधर ही सर्च करेगा, और अगर 19 से छोटा एलिमेंट मुझे सर्च करना है तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में सर्च करेगा। ओके, तो ये क्या करता है, इस तरीके से हमारे लिस्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड करके, और हर इटरेशन पे ये बार बार इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करता है और सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ओके, तो इससे हमारी सर्चिंग क्या होती है, फास्ट हो जाती है और हमारा एलिमेंट हमको जल्दी से सर्च होके मिल जाता है, इसलिए हम बाइनरी सर्च बेसिकली परफॉर्म करते हैं। अब इसके अंदर हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी मैंने बोला कि हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट चीज़ आती है कि हम इसको जो डिवाइड कर रहे हैं हम किस बेसिस पे डिवाइड करें। ओके, हम कैसे निकालेंगे, तो हमको क्या करना है, मिड एलिमेंट निकालना है। सो मिड एलिमेंट, इसके लिए हमें क्या चाहिए, मिड एलिमेंट के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे मिड। ओके, और हम इस एलिमेंट को, मिड एलिमेंट को कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय कैलकुलेटिंग इट्स इंडेक्स। अगर मुझे इस मिड एलिमेंट की इंडेक्स पता चल जाए तो एलिमेंट भी फैच हो जाएगा। सो पहले मैं मिड एलिमेंट की इंडेक्स पता करती हूँ। सो इंडेक्स पता करने के लिए हम क्या करेंगे, आई एम राइटिंग हियर मिड इज इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। ओके, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। सो इससे क्या होगा, आपको मिड नंबर, मिड इंडेक्स मिल जाएगी। स्टार्टिंग इंडेक्स आपको पता है क्या है, 0, और आपको पता है कि आपके एलिमेंट कहाँ तक है। सपोज आपके एलिमेंट है 1000, तो आप ले सकते हैं 0, और लास्ट एलिमेंट आप लोग क्या लोगे, 999। सो आपको लास्ट इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स ऑब्वियसली पता होगी एलिमेंट की। सो यू जस्ट पुट स्टार्टिंग 0 प्लस एंड जहाँ पे आपका एलिमेंट खत्म हो रहा है, और डिवाइड बाई 2। जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो गई, 0 प्लस लास्ट इंडेक्स क्या हो गई, 0 1 2 3 4 5 6 7। सो 0 प्लस 7 एंड देन डिवाइड बाय 2। ओके, सो हमारा क्या हो जाएगा, 7 बाई 2 कितना आ जाएगा, 3.5। अब यहाँ पे जब देखो पॉइंट में आएगा तो हमको इसको हमेशा इंटीजर फॉर्म में रखना है, और इंटीजर फॉर्म में रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसका टाइप कास्ट कर लेते हैं, हम सामने लिख देंगे इंट। ओके, सो इंट लिखने से क्या होगा, जो भी हमें फाइनल आंसर मिलेगा वो हमारे किस फॉर्म में आएगा, इंटीजर फॉर्म में आएगा। ओके, तो हमने इसको टाइप कास्ट कर दिया। सो अब यहाँ पे इंट 3.5 की वजह से हमको क्या वैल्यू मिलेगी। ओके, सो हमको इंट 3.5 की वजह से हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3, यानी हमारा मिड इंडेक्स, मिड वैल्यू मतलब कि हमारी जो मिडिल इंडेक्स हमें मिली है 3, और उस इंडेक्स का हमें एलिमेंट पहले फेच करना है। ओके, सो उस एलिमेंट का मिड 3 का जो इंडेक्स पे एलिमेंट फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं मिड, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं 3। तो इसे हमारा एलिमेंट आ जाएगा, तो मिड 3 पे क्या एलिमेंट आया है, 0 1 2 3। दैट मीन्स हमारे जो इंडेक्सिंग, हमारा जो डिवाइडेशन होगा वो यहाँ से होगा, 4 एलिमेंट्स इधर आएंगे एंड 3 एलिमेंट्स इधर आएंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट हमको मिल गया है वो है 8। ओके, तो इस तरीके से आपकी जो लिस्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। क्या ज़रूरी नहीं कि 2 इक्वल पार्ट्स हो, बस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, वो मिड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का आपको मिड नंबर मिला है, मिड इंडेक्स मिला है। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पे सर्चिंग कर रहे हैं, हमने मिड एलिमेंट फाइंड किया है, और उससे पहले हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमें एलिमेंट क्या सर्च करना है। तो इस पूरी इंडेक्स के अंदर सपोज मुझे सर्च करना था 20। ओके, सो 20 सर्च करने के लिए तो हम एक लिखेंगे की एलिमेंट जो कि हमें सर्च करना है।
सो की इक्वल्स टू हम लिख रहे हैं 20। ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अभी हम कोड नहीं कर रहे हैं। ओके, सो आपको 20th एलिमेंट जो 20 नंबर है वो आपको सर्च करना है, तो हमने उसको नाम दे दिया 20, की के अंदर डाल दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने मिड पता कर लिया है, हमको तो पता करना अभी ये। तो अब यहाँ पे इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है मिड पता करने के बाद, ये आपने डिवाइड कर लिया, मिड एलिमेंट हो गया। अब हम उस मिड एलिमेंट के साथ ही क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि इफ़ मेरा जो एलिमेंट मुझे सर्च करना है, जो हम एलिमेंट उसको नाम हमने क्या दिया 20, किस में डाला, की में, जो सर्च करना है अगर वो मेरा ग्रेटर है किससे, मिड 3 से। ओके, मिड 3 से यानी इंडेक्स 3 पे जो मुझे एलिमेंट फाइंड हुआ है उससे अगर ये बड़ा है तो क्या होगा, तो देखिए की क्या है 20। ओके, अगर ये एलिमेंट मेरा इससे बड़ा है, मिड पे क्या फाइंड हुआ है मुझे 8, बड़ा होगा तो ये ऑब्वियसली इस हाफ में जाएगा, इस साइड पे जाएगा। ओके, तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे स्टार्टिंग क्या सेट कर देनी है। अब मेरा स्टार्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्यों, देखो अभी तक मेरा स्टार्टिंग एलिमेंट क्या था, हमने स्टार्ट प्लस एंड किया था, दैट मीन्स स्टार्ट एलिमेंट मेरा था 0, स्टार्टिंग इंडेक्स मेरी थी 0, और एंड इंडेक्स क्या थी मेरी, एंड इंडेक्स थी मेरी, लेंथ पूरी कैलकुलेट कर लो ये, ठीक है, और उसमें कर दो -1, क्योंकि हमारा हमेशा ये लास्ट एलिमेंट से कम हम लिखते हैं यहाँ पे। ओके, सो एंड और स्टार्ट हमारा ये था। अब जब मेरा अगर एलिमेंट जो मुझे सर्च करना है, ओके, जो एलिमेंट मुझे सर्च करना है अगर वो मिड 3 से बड़ा है, इससे बड़ा है, यानी इस हाफ में, सेकेंड हाफ में, इस साइड। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमारा एंड तो वो का वही रहेगा लास्ट वाला। ओके, सो एंड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, चेंज क्या होगा, सिर्फ हमारा स्टार्ट चेंज होगा। तो स्टार्ट चेंज होगा तो स्टार्ट क्या बन जाएगा हमारा, स्टार्ट अभी तक ये था, अब यहाँ से जब इधर से स्टार्ट होगा, ये वाला मिड एलिमेंट है। ओके, इसके जस्ट बाद से हमारा यहाँ से सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एंड तो वही रहा और स्टार्ट क्या हो गया, मिड+1, मिड+1 ही तो हमारी स्टार्टिंग हो गई। ओके, सो हमारा सिर्फ एंड चेंज होगा, यानी एंड जो होगा हमारा, सॉरी स्टार्ट चेंज होगी हमारी। सो स्टार्ट क्या होगा हमारा, स्टार्ट इज इक्वल टू हमारी रहेगी मिड+1। ओके, और एंड हमारा वही रहेगा, तो एंड पे हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है और हमारी कंडीशन क्या है, हमारा की जो है अगर वो छोटा है किससे, मिड_3 से, अगर ये वैल्यू हमारा छोटा है तो क्या होना चाहिए हमारा, इसको ब्लॉक में, तो हमारा क्या होना चाहिए, फर्स्ट हाफ में सर्च करेगा। अगर इससे छोटा है दैट मीन्स फर्स्ट हाफ में सर्च करेगा। तो इसमें हमारा अब देखो स्टार्टिंग सेम है, स्टार्टिंग चेंज नहीं होगी, हमारा एंडिंग चेंज हो जाएगा। तो एंडिंग क्या होगा, मिड से एक कम यहाँ तक। ओके, सो ये हमारा स्टार्टिंग जो है वो तो सेम ही रहेगी, और हमारा तो स्टार्टिंग में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एंड हमारा चेंज हो जाएगा, और एंड हमारा क्या हो जाएगा, मिड में से -1। ओके, क्योंकि 8 तो वही एलिमेंट जो हम सर्च करें उससे कम। फाइन, अभी ये भी नहीं है तो फाइनल कंडीशन क्या हो सकती है, लास्ट कंडीशन भाई ये हो सकती है कि जो एलिमेंट हमें फर्स्ट टाइम में मिड हमने कैलकुलेट किया वही हमारा सर्चिंग हो। सपोज मुझे 8 ही सर्च करना था और मेरा मिड एलिमेंट जो है वो भी मेरा इंडेक्स 3 आया और मिड एलिमेंट 8 ही आया, हो सकता है इक्वल आ जाए, या तो इस हाफ में जाना हुआ तो ये फर्स्ट ये कंडीशन, इस हाफ में जाना हुआ तो अभी हमने की वो कंडीशन, और या फिर ये हो सकता है कि वो एलिमेंट जो हमने सर्च किया है वो उसी प्लेस पे हो जो हमने मिड निकाला है। ओके, सो एल्स कंडीशन फाइनल क्या हो जाएगी कि हमारा जो की है वो इक्वल है किसके, कि हमारा इक्वल्स टू है, सेम है। सेल्स कंडीशन हो जाएगी कि इज इक्वल्स टू दिस, है ना, वही हमारा एलिमेंट है। तो यानी कि हमारा एक सेल्स कंडीशन क्या हो जाएगी कि हमारा इक्वल है उसके, तो यहाँ पे बस इसको रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, इसको उस मिड को ही रिटर्न करना है, फाइनल वही हमारा आंसर होगा। ओके, क्योंकि उसी प्लेस पे हमारी वैल्यू हमें फर्स्ट इटरेशन में मिल गई, हमें आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया हमने रिटर्न। ओके, फिर लास्ट हमारा हो गया, सो ये हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट है बाइनरी सर्च का। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो हम कोड देख लेते हैं इसका। ओके, सो कोड बेसिकली क्या रहेगा इसमें, सेम जो भी हमने देखा था उसी को हम कर लेते हैं, एक बार रन करके भी देख लेते हैं। ठीक है, अब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी ये चीज़ कैसे वर्क कर रही, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया। फाइन, सो एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट वी हैव क्रिएटेड द लिस्ट, जो मैंने आपको बोला था पहले हम लिस्ट क्रिएट करेंगे, मैंने यहाँ क्रिएट कर रखी है।
फिर उसके बाद हम फंक्शन बना रहे हैं। अब हम सारा काम फंक्शन के साथ कर रहे हैं, तो पैरामीटर्स में क्या क्या रिक्वायर्ड है वो हम इसमें यहीं पे डालेंगे। हम वैल्यूज़ यहीं डालते हैं फंक्शन डिफाइन करते टाइम। तो पैरामीटर्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, एक तो हमें लिस्ट रिक्वायर्ड है जो हमने बनाई है, इसके साथ में हमें जो एलिमेंट सर्च करना है जिसको हमने नाम क्या दिया है की, जो एलिमेंट हमें सर्च करना है उसकी रिक्वायरमेंट है। एक मुझे स्टार्ट की ज़रूरत है, मिड फाइंड करने के लिए मुझे एंड की ज़रूरत है। तो जो जो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है हमने यहाँ पहले डिफाइन कर दिए। फिर उसके बाद हमने लूप चलाया इफ़ स्टार्ट इज़ लेस देन इक्वल्स टू एंड। ओके, ये मतलब ये सारी जो हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं कब तक होगी, जब तक हमारा स्टार्टिंग जो है इससे लास्ट वाले से छोटा हो और इक्वल हो तब तक ये चलेगा। यानी 0 1 2 3 4 इंडेक्सिंग ये चेक कर रहा है बेसिकली। स्टार्ट और एंड क्या है यहाँ पे, इंडेक्सिंग है। ओके, सो जब तक हमारा स्टार्ट जो है इससे एंड से छोटा होगा तब तक ये लूप हमारा चलेगा। फिर इसमें हम क्या कर रहे हैं, लूप के अंदर पहले मिड कैलकुलेट कर रहे हैं। सो मिड अभी हमने कैलकुलेट करना सीखा था, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2। सो स्टार्टिंग इंडेक्स 0 प्लस फाइनल इंडेक्स जो भी है डिवाइड बाई 2। और हमने यहाँ बाहर लिखा है इंच, इसको टाइप कास्ट करना है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे अभी कि हमें इसको इंटीजर फॉर्म में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर फ्लोट वैल्यू आएगी तो ऑटोमेटिकली उसको इंटीजर फॉर्म में ले लेगा। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से मिड आपका कैलकुलेट होगा। फिर ये चेक करेगा इफ़ आपका ए मिड जो है वो ग्रेटर देन की है, जो एलिमेंट हमें फाइंड करना है उससे अगर बड़ा है तो कहाँ जाएगा ये, सपोज 67 मुझे फाइंड करना है। ओके, की मेरा 67 है, तो जो मैंने डिवाइड किया इसको, अगर ये इससे बड़ा है तो इस वाले सेकेंड हाफ में चला जाएगा और यहाँ पे ये क्या कर देगा, हमें क्या रिटर्न करेगा। अब हम देखिए इस फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, रिकर्शन कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो हमें रिटर्न करेगा बाइनरी सर्च। ओके, और उसमें भी हमें क्या करेगा, ए एज इट इज़ रहेगी लिस्ट, की भी हमारा वही रहेगा जो हमें सर्च करना है। ठीक है, स्टार्ट जो है वो भी सेम रहेगा, क्योंकि ये जब हमारा मिड एलिमेंट बड़ा है, ओके, जो हमें सर्च करना है, यानी हमारा जो सर्चिंग एलिमेंट है वो छोटा है, 67 मुझे सर्च करना है और उससे छोटा है अगर, तो फर्स्ट हाफ में जाएगा। ओके, सो स्टार्ट तो हमारा वो का वही रहेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स तो हमारी 0 रहेगी, यहाँ पे स्टार्ट सेम रहेगा। और एंड हमारा यहाँ पे सपोज 67 सर्च करना था, तो एंड इसके लिए क्या बन गया, ये वाला। सो ये हो जाएगा मिड -1। वैसे ही अब एल्स इफ कंडीशन में अगर की एलिमेंट बड़ा है, जो एलिमेंट हमें सर्च करना है वो बड़ा है, यानी वो सेकंड हाफ के अंदर है। ओके, उस कंडीशन में अगेन हम यहाँ पे रिकर्शन कर रहे हैं, अगेन हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, सेम प्रोसेस वापस ये करेगा, लिस्ट सेम रहेगी, की सेम रहेगी। अब यहाँ पे एंड सेम रहेगा। ओके, लेकिन स्टार्ट क्या हो जाएगा, मिड +1। एल्स अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो ये हो सकता है कि जो एलिमेंट हमने मिड पे फाइंड किया था उसी के केवल एक ही बार में हमारे पास आ जाए। सो मिड, ओके, एंड ये हमें रिटर्न कर देगा एल्स रिटर्न मिड नंबर फाउंड, एंड नंबर जो हमें फाउंड हुआ वो ए मिड, यानी उस इंडेक्स पे जो भी नंबर है वो। ओके, ये हमारा पूरा मेन प्रोसेस हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, ये पूरा प्रोसेस कब होगा, जब हमारा स्टार्ट इज़ लेस देन इक्वल्स टू एंड है, यानी हम इसी इंडेक्सिंग के अंदर 0 to हमारा 45 6 तक जो इंडेक्सिंग है यहीं तक सर्च कर रहे हैं। और जैसे इस इंडेक्सिंग के बाहर आ जाता है ना, बाहर हम किसी इंडेक्स पे अगर सर्च करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या बोलेगा, कैन नॉट फाउंड, क्योंकि जो आप इंडेक्स डाल रहे हो हमारे इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 0 to 8 तक की। सपोज़ आप 9 इंडेक्स पे फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो तो ये बोल देगा जो एलिमेंट आप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो ये नहीं मिलेगा और रिटर्न -1। ओके, फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा प्रिंट बाइनरी सर्च। ये बेसिकली हमने क्या किया है, फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है। तो ये पूरा फंक्शन हमने डिफाइन किया, यहाँ तक आपका फंक्शन डिफाइन हुआ है, जिसको इंटरप्रेटर क्या करेगा, सिर्फ इंटरप्रेट करके रख देगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसका फ्लो डायरेक्टली यहाँ जाएगा। ओके, तो ये इस स्टेटमेंट को देखेगा और देखेगा हमने फंक्शन को कॉल किया है बाइनरी सर्च, और कॉल करते टाइम हम एक्चुअल वैल्यूज़ देते हैं। तो हमने दिया है ए ऑलरेडी हमने डिफाइंड है, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल स्कोप हमने पढ़ा था। ओके, कोमा फिर हमने लिखा है की देना है सेकंड पे, और की हम दे रहे हैं 92, यानी कि मुझे इस लिस्ट के अंदर से 92 सर्च करना है। सो मैंने इसको दिया यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू 92, कोमा फिर हमें क्या देना है, स्टार्टिंग इंडेक्स हमें पता है क्या है हमारी 0, फिर हमें देना है एंड इंडेक्स हमें पता है क्या है, जो हमारी टोटल लेंथ है लिस्ट की उसमें से -1, वो हमारा एंड होगा। तो जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पास होगी ए की स्टार्ट एंड के पास। ओके, फिर इसके बाद ये पूरा फंक्शन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये लूप चलता रहेगा जब तक कि हमारा हमें जो सर्चिंग एलिमेंट है वो मिल नहीं जाए। ओके, अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं, देखिए किस तरीके से काम करता है। तो मैंने इसको रन किया है, सो यू कैन सी हियर 6, नंबर फाउंड, 92। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट क्या करवाया है, हम सर्च कर रहे हैं 92, और 92 कहाँ पर है, सेकेंड हाफ के अंदर है। ओके, क्योंकि मिड एलिमेंट इसका आया था 0 + 8 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 4 0 1 2 3 4, यानी 89 एलिमेंट इसने मिड लिया, इसके साथ कंपेयर किया।
ये इसको सेकेंड हाफ में मिला होगा जाके कहीं 92। ओके, सो 92 के इंडेक्स आप देख सकते हैं 6 ही है, 0 1 2 3 4 5 6। सो 6 इंडेक्स पे हमें एलिमेंट मिल गया है 92 जो हमें सर्च करना था। ओके, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी। और आपका जो फिबोनाची सीरीज़ है वो आपका होमवर्क रहेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके फिबोनाची सीरीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो उन फॉर्मूलाज को जैसे फैक्टोरियल में हमने यूज़ किया था इसमें यूज़ किया है, उसको अप्लाई करके और रिकर्शन के कॉन्सेप्ट के साथ उसको रन करके करने की ट्राई करना। और ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको ये सब मुझे करके दिखाना है फिबोनाची सीरीज़ के लिए। ओके, और इस पूरे कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू।